Yes, ma'am, Yes, it's ma'am. audible. Ma'am, Okay, okay. Yes. ma'am, whether we have edit text or text view here, ma'am. What, sir? We have to include Text the view, edit text text view, or text view. text view, text view. Just Text view. say text view. It will be okay. It will be easy. Okay, ma'am. And then move to XML file. Java main activity file. Just remove the text you have created. Hello world. You don't have to pass the Yes, text ma'am. in main. That's it fine now, ma'am. Yes. Remove EMS Okay, also. ma'am. Text parameter EMS. That nothing. It's just we want constraint only. Input type also remove. Okay, ma'am. Yes. Now move to main activity dot Java file. Then here we have to create a button, and which we have created now one text view and two buttons. Create that after public class. After public class. Okay. So, And then what we have two buttons and one text view. Create for text view also. T1. Okay. Then we have created this three buttons. Have you passed the ID in XML file for button yes, text view? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. We have created that the class button. Then we are after button here we are doing button dot btn. After a set content view, Yes, ma'am. the text view which we have created, we have to pass the ID for that. T1 equals to, it gives you suggestions. T1 equal to find view by ID. Which ID you have created for text view? Text to ma'am. Text button. Okay. Same for button, we have to create the ID. Yes. R dot ID it will come. Sorry.
After the passing, after passing the ID, we will set a event for the button. Okay, for button we will set the event by using onClick listener. Right, btn dot set onClick listener. Sorry, butn. BET. Yes, ma'am. Okay, sorry. One butn1 set on click listener. We will create a view. Right, new view dot on click listener. Yes, first option. For on click listener, for on clicking the option, the public void on click view I have written. In that we will pass the event, that is increment. Same for button to create the set on click listener. Yes, ma'am. After creating the on click listener, now we will create a public void increment, that is for to pass the event function for the increment to increase, so that if landscape changes from portrait to landscape, yeah, or landscape to portrait, the number should be the same. Okay, for that thing we have to create a private class, that is increment. After a curly braces of 36 line, create increment function. Type increment private, just type private void and give the function for it. Yes, and in past write I plus plus. Here, ma'am. Yes, what I plus plus does, I plus plus does the increment. And in next, for the for how it increments the text view, for that we have to write a string value in that. Next line, type the text view t1. In increment function only, ma'am. Yes, increment part, because how it get incremented on text view, the text which we have created, Yes, ma'am. in that increment will be done. T1 dot set text, we will add a text t. Yes, first. And here there are options available, that is we want in character, we want in string, we want in integer. There are various options are available. We will select the string. Yes, select string. Just type string dot. Yes, you are correct. String dot, just remove the at the rate, value of, and give the function. Give the function to it. Okay. Remove the at the rate sign. Remove at the rate sign, sir. Yes. Here the function, here we have here the yellow highlight is coming, right, on 48 line. Why it is Yes, ma'am. coming? Because we have not passed the value for it. We have seen the blank. For passing the value, we have to create the integer, some value or the
some value to pass for it. We will create a class for I. Move above and create I, int I, integer. Move up, upside, where you have created a button. Yes, create I, integer I. Yes, int I, semicolon. Okay, then pass the value I in that string. Here, ma'am. Yes, our value I. You have to pass the value I. If our value is something in our value is in integer format, and if it is convert how it gets converted in string format, that is string dot value I. It will give you in string format. Then same create for decrement. Shall I copy paste it, ma'am? Yes, it's okay. Global variable. That's it, fine, ma'am. Next to the function we have created I above. Yes, ma'am. That here we are creating a global variable, that is int I equals to 0. Okay, Okay, ma'am. class. Okay, ma'am. Increment, change the have you right, increment minus minus text value. uh, what we are doing here on click listener, there are two functions, that is save instances and for restore instances. Okay, in save instances we are creating and storing we are in save instances we are storing store create the variable and store in it, and after storing it, restore instances will give us the value after changing the landscape from portrait to landscapes. Then we will create here the move downward after creating the increment functions. Yes, we will create now on save instance function. Yes, ma'am. Yeah, Is conflict it listener. is it this, ma'am? Yes, wait, okay. Yes, ma'am. It is public one. We have to create a protected one.
Then, ma'am. Ma'am, I think there will be error in product. Yes, because you have cut that part whole on save instance. Okay. Now move above the where the button you have created. BTN set. Yes, here we have to pass the button function here. Okay. After public on click view, here only in a public void on click view function. Yes, ma'am. Yes, type your increment and give the functions and semicolon, and in button 2 give the decrement function. Now move downward side. We have passed the function increment in button 1 and increment decrement in button 2. Okay. Now what we will do, we will use the save instances function, that is protected one. After a decrement function. After closing, yes, after that create a protected, just type protected void, just type on save instance, it will be okay. Yes, here appearing. No, option is not coming. Just type on save instance. Yes, first protected one. On save in. On save instant state, ma'am. Or it is just on save instances. This is wrong. Clean the org. What, ma'am? No, it is not showing. Sir, just type on save. Don't write anything. First clear all that part. Just type on save. This one, ma'am. Second option. First one. First one. Not bundle, not allowed. Um, Is it this, ma'am? But it is in public, ma'am. सर इसको हटा के हमें ये करना है, प्रोटेक्टेड वाला करना है, वॉइड सेव इंस्टेंस. What, ma'am? सर वापस एक बार क्लियर करो.
protected. Yes, Yeah, protected one. click. Yes. Uh, @org, jet brands and notation notations not nullable. Clean कर दो उसको only. हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है. @org से select करो. This full thing, sir. @org only. @org से. सर आवाज नहीं आ रहा है. हेलो हेलो. एट द Yes, रेट ओ sir. आर जी से सिलेक्ट करो. हाँ. बंडल तक बंडल बंडल क्लास तक सेलेक्ट कर लो. मीन्स आपको आ रही है आवाज सर की. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बंडल क्लास ओनली बंडल बंडल को छोड़ दो. बंडल को अनसेलेक्ट कर दो. बंडल के पहले जो नॉट नल लिखा हुआ है वहां तक सेलेक्ट करना है केवल. बंडल को छोड़ के बंडल. हेलो. Yes, sir. बंडल को अनसेलेक्ट करो. I'm not अनसेलेक्ट getting द you, बंडल. sir. Bro, Should I select वेट from. am I वेट वेट correct, bro? वेट. वामशी कृष्णा सर इनको बोलो @org से बंडल के पहले जो नॉट नलेबल है केवल उतना पार्ट इनको क्लीन करना है. बंडल को क्लीन नहीं Okay, करना है. bro. Yes, bro. Everything is fine, but except bundle, you need to select this whole content, bro. You selected is right, but leave that bundle. Yeah, yeah, Yeah. yeah, yeah. It's okay, now, sir. यस क्लीन क्लीन कर दो उसको. क्लीन हटा दो उसको. डिलीट. हाँ बस. ओके. अब जो भी कोड करना है मैं चांदनी में बता दो. Okay, we have created the save instances function bundle outstate. Here we will put a value, enter the function which we have created bundle outstate. Click enter. Sir. After super save instance, yes. Then outstate. Small o. Yes. Dot put int. We will pass the value. Yes. Here first option which was available was we will create one variable and we will pass a value, and next we will pass a value. Create variable in double quotes k1, it will be okay. Type k1 after double quotes comma pass a value I. Same we will create for restore instance. Ma'am, here saved instance will come. Yes. No, not there. There will be the outstate only. Okay. And where we have created the save instances above in restore bundle save instance, type there outstate.
Here, ma'am. Yes, both. And after bundle, Ma'am, the same variable or we have to put different? same variable for decrement and increment. So we have to put the same. In restore, it does not change the value. Now run the output. Click on button. Yes, One more ma'am. time. Click. Next button. Yes, ma'am, it is working. Change the orientation. But it is not the Yes. same thing. Yes, ma'am. It's Yes. overlapping, ma'am. The We have text is to also same, ma'am. wait. First change in XML. Change the UI, and it is overlapping. No, just Yes, ma'am. Changed. yes. And main dot activity file. Move once again. Yes, ma'am. Um, just change from put in to get int function. On restore में. Yes, ma'am. Shall I run now? Yes, run. So just clean the project. What, ma'am? Ma'am? Yes, sir. एक बार sir change the orient. Hello.
Yes, sir. वामशी कृष्णा सर, आप ना Yes, sir. ये गेट गेट इंट में से जो कोमा लगा करके अपने आई जो लिखा हुआ है उसको वहां से हटवा दो, एंड देन आउट स्टेट की जो वैल्यू अपन ने वहां से पास की है ऑन सेव इंस्टेंस से, वो वैल्यू अपने को रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट के अंदर अपने पास गेट हो जाएगी गेट इंट की मदद से, ठीक है। तो अपन उसे एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, या फिर जो अपन ने ऊपर आई वेरिएबल बनाया हुआ है उसी वैल्यू को वहां पे आई में स्टोर करवा देंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ से ये कोमा आई हटा दो केवल, और आई स्टार्टिंग में लगवा करके उसको इक्वल टू में डाल दो बस। हेलो Hello, sir. Shabareshwan is representing the screen, sir. सर, आप प्लीज उनको बोल देंगे ये बात, क्योंकि मैं बता देता हूँ कैसे करना Okay, है। okay. Yes, sir. मैं बता देता हूँ उनको, ठीक है। कमेंट में चेक करना, ठीक है। एक कमेंट। Bro, Shabareshwan, bro. Yes, sir. Yes, Yes, sir. bro. I got you. Bro, just see the comment, bro. You'll just get to know what is the wrong you have done in the code. Okay. Oh, Dhruvi, Toral, Does it come outside? Toral. This is fine. नो 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 नो, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, नीचे ऑन रीस्टोर मेथड। On restore. Okay, sir. So here out state or on state, sir? सॉरी, ऑन स्टिक जो लिखा हुआ है, जो वेरिएबल अपने पास बंडल का वेरिएबल है ना ऑन, मुझे क्लीन Okay, sir. नहीं विजिबल है एक्चुअली। आउट है ऑन है, क्यों हम सर? Sir, for me also it's totally blurred. हाँ सर, Sir, इसलिए मुझे भी on कुछ state पता नहीं है, चल रहा। हाँ तो on ऑन state स्टेट है. लिख दो, ऑन स्टेट लिख दो मैम वहाँ पे, ऑन स्टेट, ठीक है। ऑन स्टेट डॉट गेट इंट K1, एंड नीचे कमेंट चेक करना है, कमेंट चेक, मैसेज या Hello, sir. यस। Yes, sir. 1 second. Due to network issue.
Sir, does it correct? Yes, Sir, yes. this has to be same on same instances also, na? नहीं मैम चलेगा, रन करना। हेलो, या बिल्कुल। Sir, it becomes 0. या सर इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट कीजिए और या It is 5 now, यस यस। but it becomes 0. ओके, Yes, sir. Sir, move above and need not equal to jar file. हाँ हाँ मैम, मैं पता चल रहा है मुझे। कोड दिखाना ऊपर तक पूरा। Pass the value, don't pass value equal to 0. Just pass the integer I. ठीक है, Yes, स्क्रॉल sir. करना नीचे। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे कुछ नहीं करना है, नीचे आओ, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल, बस बस बस। ठीक है ठीक है, ऊपर करना, ऊपर ऊपर ऊपर। मैम ऊपर स्क्रॉल करने के लिए बोलूँगी, ऊपर थोड़ा सा ऊपर। Upper, सर sir. ऊपर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, बस 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 बस। ठीक है, इंक्रीमेंट मेथड, इंक्रीमेंट मेथड पे आना। Yes, sir. ठीक है, ओके, नीचे आना, नीचे। ओके, ठीक है। वेरिएबल चेंज कर सकते हो क्या? ऑन सेव, ऑन सेव इंस्टेंस का वेरिएबल बना सकते हो यहाँ पे, ऑन Yes, रीस्टोर, sir. ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट वाले में करना। यहाँ पे बनाना है आपको ऑन, सॉरी, सेव इंस्टेंस स्टेट, ऑन स्टेट की जगह पे ऑन स्टेट जो लिखा हुआ है वहां नहीं, नीचे रीस्टोर वाले में, रीस्टोर 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 वाला, या बंडल के आगे, हाँ Yes, sir. हाँ, सेलेक्ट ओनली ऑन स्टेट, सेलेक्ट सेव, सेव इंस्टेंस, इंस्टेंस में आई कैपिटल, स्टेट, स्टेट में एस कैपिटल, ठीक है, एंड कॉपी द वेरिएबल, कॉपी करो इसको, ऑन स्टेट, हाँ, पेस्ट डाउन, पेस्ट, नीचे भी पेस्ट, जो Shall I run now, sir? सेव इंस्टेंस स्टेट, सेव सेव इंस्टेंस स्टेट स्पेस डॉट, वहां से स्पेस को क्लियर कर दो बस, ठीक है। Okay, sir. और वहाँ ऊपर आपने क्या A1 लिया है ऊपर, आउट स्टेट गेट इंट में, आउट स्टेट गेट इंट, Yes, sir. या उसको K1 करो, K1, A1 को K1, रन।
Sir, now also it becomes 0, sir. Yes. Now also it becomes 0 only, sir. Okay. Your screen sharing off कर दो please. Okay, sir. चांदनी मैम और हिंदी वालों को बुलाओ, कहाँ गए रह गए, कोई आया Yes, नहीं. sir. वेट गाइस, आप लोग वेट कीजिएगा. मतलब क्या नाम है आपका? सुब्रतरम, क्या नाम है भगवान? नाम बोलना नहीं यार, सॉरी सर. वामशी कृष्णा सर हैं यहाँ पे, प्रेजेंट हैं? वामशी कृष्णा सर. वामशी कृष्णा सर है क्या? नहीं है, कदे गए. ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट अ मिनट. वेट अ मिनट प्लीज. See, write code. Screen is visible. Sabreshwar sir. Yes, sir. Screen is visible. Yes, sir, visible. Okay. See, this is your program. BTN 2 button in one text view. यहाँ पे जो है वो आपने int I लिया हुआ है, राइट? ओके, चेक योर प्रोग्राम ओनली. ठीक है. Initialization to all buttons and text. ठीक है. Click set on click listener. Method decrement first button and second button is increment. चांदनी मैम. Yes. हेलो ma'am. चांदनी मैम, Yes. आपने कहाँ गलती की थी, कुछ पता है आपको? नहीं सर, मैं वही चेक करूँ एक बार कोड, मेरे को वापस कोड देखना पड़ेगा एक बार अच्छे से. हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है. विजिबल है स्क्रीन हाँ मेरी? सर. हाँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सर सा मैंने वेट भी ये कीजिए. कोड मेरा रन करके देखा था तो मेरा आउटपुट आ रहा था इसके वजह से. ये देखो, नहीं नहीं ये देख लो. मैंने क्लिक किया था फर्स्ट बटन पे, देन डिक्रीमेंट मेथड मैंने वहां पे बनाया था, ये रहा. ठीक है. देन मैंने टेक्स्ट में वैल्यू को सेट किया था एम काउंट, एंड इंक्रीमेंट में भी मैंने ये किया था. ठीक है. उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट मोड पे सेव ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट जो मेथड आपने यूज लिया है
वही मेथड का मैंने यहाँ पे यूज लिया था। आउट स्टेट यहाँ पे इसका वेरिएबल था। यहाँ पे मैंने आउट स्टेट में एक जो वैल्यू थी मेरे पास, यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है ना ये tx, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? दिखाना, मेरी स्क्रीन दिखाना सर, सबरेश्वर सर, प्लीज शेयर योर Yes, स्क्रीन, sir. Yes, sir. शेयर योर स्क्रीन प्लीज। इंक्रीमेंट में टेक्स्ट सेट टेक्स्ट नहीं करना है आपने को। रुक जाओ वेट अ मिनट ओनली वेट अ मिनट। Okay, sir. ओके, इंक्रीमेंट हो गया। नीचे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल। ओके, स्ट्रिंग डॉट ये है, आउट स्टेट K1 जो आपने K1 में K स्मॉल लिया है दोनों साइड पे। What, sir? आपने K1 जो लिखा है उसमें लेटर कौन सा है, अल्फाबेट कौन सा है? K कैपिटल है या स्मॉल है? दोनों में Small k. बोथ, दोनों साइड पे। रीस्टोर का की Small k only here, sir. पहले कैपिटल था। Shall I make it capital? पहले चांदनी में बोलना Before please। it was capital or small, both should Both be same. both are small, ma'am. Okay. K1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आ गई, आई में सेव हो गई, देन टेक्स्ट व्यू। अपन ने यही वैल्यू यहाँ पे सेट करवा दी थी। Okay, only stored instance little protected। ठीक है, तो your function is run please। your program is correct। Yeah, zero Sir, yes, है ना, sir. zero। 0. या चांदनी मैम, इस प्रोग्राम को मैं कल देखूं अच्छे से, अभी मेरे Okay, क्लास का sir. टाइम हो रहा है एक्चुअली। Yes, sir. सबरेश्वर सर, आपको मैं कल आपको मैं डाउट दिन में चांदनी मैम भी रहेंगी और आप तीनों इंग्लिश। मैम कल 1 बजे आप फ्री हो? मैम आप इनको एक टाइम बता देना तीनों को, तो ये वहां पे आकर के समझ लेंगे इसी प्रोग्राम को। वहां पे मैं वहां पे इन्हीं के लैपटॉप में वहां पे रन करवा के दिखाएंगे इसी प्रोग्राम को दोबारा से, ठीक है? सर आप 4 बजे अवेलेबल हो?
Yes, कितनी ma'am. बजे? 7 p.m. Saturday 7 7 PM p.m. नहीं मैम, नो मैम. ओके, तो आप बताओ ना कौन से टाइम पे अवेलेबल हो फिर. आप मुझे 1 से 4 के बीच में कोई टाइम बता दो जब आप फ्री हो. 1 से 4 के बीच में. English session between 1 to 4. Anyone available tomorrow? Yes, ma'am. Available. तो मैम कल आप टाइम बता देना, ग्रुप में डाल देना इंग्लिश वालों का कि हाँ Okay. जो प्रोग्राम था केवल वो उस समय चलवा देंगे. ठीक है. Okay. Okay, sir. ठीक है. Sir, we will do tomorrow Okay, ma'am. afternoon. Sorry. तो हिंदी वालों क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर. इवेंट में सब गाइस, इवेंट में सब लोग के अपने प्लान नहीं बताया इवेंट के बारे में. देखा जाए रुपेश सर हैं, शिखर सर क्या प्रॉब्लम आई थी आपको, मुझे बताओगे? मेरी सर वो इमेज इंपोर्ट नहीं हो रही थी सर. रुपेश सर से क्यों नहीं हो रही थी? सर उसमें सर मैंने वो रिफ्रैक्टर यूज नहीं किया था सर. क्या? सर रिफ्रैक्टर यूज नहीं किया था सर वो रीनेम करने के लिए. ये क्या होता है? रिफ्लेक्टर क्या होता है? सर रीनेम करने के लिए यूज किया था सर. रीफैक्टर. हाँ सर, रिफ्रैक्टर. ओके, रीफैक्टर की बोल रहे हो क्या आप? तो उसमें आपने सारे एक कैपिटल लेटर थे क्या उसमें इमेज के नेम में? यस सर. हाँ, सभी स्मॉल्स होते हैं. उसमें एरर दे रहा होगा इस चीज की, शायद हो सकता है. यस सर. आपने तो आपने जो इमेज ली थी वो क्या आपने आउटसाइड से ली थी क्या? सर ये सर आउटसाइड से लिए थे. तो आउटसाइड से क्यों लिया? मैंने आपको उस दिन बताया था, मतलब जब स्टार्टिंग में अपना पढ़ा था पूरा सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू, तो उसमें अपने बताया थे 2 इमेज के लिए अच्छे खासे इमेज एसेट्स बताया था एंड वेक्टर एसेट्स बताया था, अच्छा खासा बताया था दोनों चीज. सर उसमें सर कलर का सर प्रॉब्लम था सर, कलर नहीं ले पा रहा था. बाद कहाँ में सर कलर का प्रॉब्लम होता है सर? उसमें आप जो चाहो कस्टमाइज कलर दे सकते हो, मैंने वो भी बताया था. रुपेश सर स्क्रीन शेयर करो, दोबारा बताते हैं. एक दिन पहले भी बताया था, अभी तो कल परसों ही बताया है. एक बार और बताते हैं. रुपेश सर स्क्रीन शेयर करो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. क्यों उमंग मैम, आपने पूछा था ना मुझसे वो इमेज का? यस सर. बताया था ना मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही. यस सर, इमेज एसेट्स और वेक्टर एसेट्स दोनों बताया था आप मुझे, और कलर नहीं, चेंज करना. क्लास में भी बताया था ना मैंने दोनों. अभी कुछ क्लास दिन में पहले. भी आपने जिस दिन लीनियर लेआउट का दिया था उसके नेक्स्ट डे बताया था. देख लो शिखर सर, ध्यान दो यार थोड़ा सा. मैं मतलब पूरा बताया हूं आपको, ऐसी बात नहीं कहीं पे भी दिक्कत हो. देखो लिखा हुआ है इमेज एसेट्स एंड वेक्टर एसेट्स. ठीक है, यहाँ पे आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हो. ठीक है, ऊपर आइकन टाइप में आप सॉरी क्लोज करो उसको. आइकन टाइप में आप जाकर के सेलेक्ट करोगे एक्शन बार एंड टेब आइकन. ठीक है, देन उसके बाद आप क्लिप आर्ट वाले आइकन पे जहां पे एंड्रॉइड का साइन आ रहा है वहां पे क्लिक करोगे केवल. यहां से आप जो भी इमेज सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, कोई भी एक कर लो सर, कोई भी एक. ठीक है, उसके बाद नीचे थीम पे अपन आते हैं तो वहां पे कस्टम का अपने को ऑप्शन मिलता है. थीम 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 हाँ, कस्टम. यहाँ पे देखो कस्टम कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है अपने को, जो चाहे वो कलर कर सकते हैं आप. कलर की कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ?
बोलो शिखर सर, आप बोल रहे हो कलर की दिक्कत आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही है? कलर तो आपकी मर्जी पड़े जो लो, जो आपकी इच्छा हो। मैं बताऊं, आप जब इमेजेस आउटसाइड से लेते हो ना, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि आप जब लेआउट बनाओगे ना, बड़े बड़े कंपनीज के लेआउट जब आप बनाओगे, बनाने बैठोगे, तो वहां पे आपको ना रेस्पॉन्सिव करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। आप है ना बड़ी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन के अकॉर्डिंग तो आप एडजस्ट कर लोगे एक बार चला करके मोबाइल में अच्छे से, लेकिन जब वो वही चीज छोटी स्क्रीन पे चलेगी ना, तो वो वहां पे फेल हो जाती है फिर एप्लीकेशंस, और उसके बैड रिव्यूज आते हैं। क्योंकि यूजर है ना, कभी ये नहीं सोचता है कि डेवलपर की कितनी मेहनत लगी है उसको बनाने में। वो एक सेकंड नहीं लगाता उसको बेकार बोलने में, एक सेकंड भी नहीं लगाता केवल। समझ रहे हो शिखर सर? यस सर। आपने भी कमेंट किए होंगे कई बार, कई सारी एप्लीकेशन चलाई होंगी जो इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज पे होंगी ना, वो आपने चलाई होंगी, तो आपने भी मतलब रिव्यूज तो दिए होंगे, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, क्या यूज हो रहा है इसका, क्या है क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं है। आपको पता है पतंजलि ने एप्लीकेशन लॉन्च किया था तो बीच में कितनी वो हुई थी उसकी, इंसल्ट कितनी झेलनी पड़ी थी। उसकी एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल थी, बट उसमें लॉगिन और साइन अप पेज ही नहीं था। सबसे बड़ी गलती थी उसकी, पतंजलि की एप्लीकेशन की है। यूजर डाउनलोड तो कर रहा है पर उसको लॉगिन और साइन अप पेज ही नहीं मिल रहा, तो वो अंदर कैसे जाएगा? तो शिखर सर, इन चीजों पे ध्यान दो, आइकन, इमेजेस, इन चीजों पे ध्यान दोगे तब बनेगा अच्छे से एंड्रॉइड एप्लीकेशन, अच्छे से यूआई तब बनती है। ठीक है, नेक्स्ट करो, देन उसके बाद आप फिनिश क्लिक कर सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगा। देखो 4 पीएनजी फाइल आपको मिलती है अलग अलग साइज में। एक, सॉरी 4 नहीं, हाँ, ड्रॉएबल ओपन करना 6 होगी शायद, 6 या 5 होगी। यहां से नहीं, इसको क्लोज कर दो केवल ड्रॉएबल पे, ड्रॉएबल फोल्डर पे क्लिक कर लो इसके, ड्रॉएबल वाले ऊपर 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 ऊपर, यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर, ऊपर ड्रॉएबल नाम का फोल्डर होगा, स्क्रॉल कर दो नीचे बस। हाँ, आईसी एक्शन नेम देखो यहाँ पे 5, 4 तो आपको इमेजेस मिलती है, और 5th जो मिलती है आपको एक्सएमएल मिलती है, जो एनी डीपीआई के लिए मिलती है, यानी कि किसी भी रेजोल्यूशन के लिए वो साइज ले लेगा उसके अकॉर्डिंग। इससे बेटर चीज कहाँ मिलेगी आपको, ये बताओ? कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, आपसे आउटसाइड से जो इमेज डाउनलोड करते हैं ना, उसकी साइज का रेजोल्यूशन सेट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, हर डिवाइस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे आप प्रॉपर वे में। बेटर है कि आप यहीं से चूज कर लो। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया था। आपको मैंने बोला था रिसाइकलर व्यू वर्क कैसे करता है, उसके लिए मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाला था, राइट? Yes, छोटा yes, सा sir. वीडियो है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, इंटरनेट से डाउनलोड किया था, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वर्क है। डाउनलोड सेक्शंस में अपन चलते हैं। नहीं है दिस, यस, देखा मैं मोबाइल से
हेलो हेलो, यस सर। वॉइस आ रही है मेरी? सर आप अपनी यस सर। स्क्रीन प्रेजेंट करना शो ऑफ करोगे? मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ वीडियो दिखाने के लिए बस थोड़ा सा। यस सर। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, ये रहा। ठीक है, ऑडियो आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हेलो सर ऑडियो नहीं आ रहा है हेलो, शायद। सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट कर दीजिए फिर बताते हैं। अभी सर ऑडियो नहीं आ रहा है। आपको ऑडियो नहीं आ रहा है? सर एक्चुअली मुझे नहीं हेलो, आ रहा है, तो शायद मेरे में कुछ इशू है या किसी फिर आ नहीं रहा है, मुझे किसी को पता नहीं नहीं आ रहा सर। है ऑडियो। हाँ, किसी को भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ऑडियो। No, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब मैं बोल देता हूँ फिर, ठीक है? मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अपन ने, जैसे कि मैंने कल बताया था पूरा, कि रिसाइकलर व्यू क्या करता है, जितने भी अपने पास लेआउट, बहुत सारे अपने पास आइटम्स हैं, ठीक है? अब उन आइटम्स को अपन शो करवाने के लिए अपन लिस्ट व्यू का यूज ले सकते हैं ना। लिस्ट व्यू में लीनियर लेआउट की हेल्प लेकर के अपन उसको पूरे लेआउट को अपन अच्छे से दिखा सकते हैं। बट उसमें क्या होगा, जो अपन जब लिस्ट व्यू का यूज लेंगे तो वो सारे लेआउट एक साथ क्रिएट कर देगा, सारे मतलब सारे डेटा बना देगा। तो और अपनी डिस्प्ले पे जो डेटा शो होगा वो केवल 5 to 7 ही डेटा शो होगा। अब वो लिस्ट ने पूरा डेटा तो अपने को दिखा दिया, दिखाने में तो ठीक है, लेकिन उस डेटा का यूज क्या है, कुछ यूज नहीं है ना, क्योंकि वो लिस्ट तो अपने को तो आइटम कितने दिख रहे हैं, 5 डेटा दिख रहा है, 5 का डेटा ही अपने को विजिबल हो रखा है, 5 ही डेटा अपने डिस्प्ले पे विजिबल है, ठीक है? बाकी जो डेटा है जिसके व्यूज बन चुके हैं वो तो वेस्टेज है। जब तक अपन स्क्रॉल नहीं करेंगे तब तक के लिए तो वो वेस्टेज है ना, ठीक है? तो उसमें डेटा मेमोरी का काफी ज्यादा यूज होता था, तो इसीलिए रिसाइकलर व्यू आया। रिसाइकलर व्यू ने क्या किया, उसी चीज को सॉल्व किया कि भाई डेटा जो है अपना ज्यादा यूज ना, मतलब वो जो मेमोरी है वो ज्यादा यूज ना हो, और जो अपनी स्क्रीन पे जितना डेटा विजिबल होना है उसी डेटा का उसी में से अपन उसी का यूज लेकर के केवल एक एनिमेशन की मदद से यहाँ पे अपन उसको समझेंगे कि भाई रिसाइकलर व्यू क्या करेगा। जैसे ऊपर वाला फर्स्ट डेटा है, जैसे अपन स्क्रॉल करने जाएंगे, ठीक है? अब अपन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो वो क्या करेगा, ऊपर जो डेटा है उस डेटा को क्लीन कर देगा, देन ऊपर जो व्यू बन चुका है उसको ला करके नीचे स्टोर कर देगा और उसमें नया डेटा इंसर्ट कर देगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा, जो ऊपर स्क्रॉल हो चुका है डेटा
वो डेटा रीयूज मतलब नया उसको क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, व्यू क्रिएट करने की उसको न्यू नीड नहीं पड़ेगी, उसी व्यूज को वो यूज ले सकता है नया डेटा डालने के लिए केवल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और जब लिस्ट व्यू, पूरी लिस्ट व्यू क्या करेगा, एक साथ सारे डेटा का व्यू बना देगा पूरा अच्छे से, तो वहां पे अपने को प्रॉब्लम होती है फिर, क्योंकि एक साथ सारा डेटा बन जाता है ना, सारा डेटा व्यू हो जाता है, तो अपने को केवल 5 to 6 ही विजिबल होता है, बाकी तो मेमोरी में यू पड़ा रहता है बना करके पूरा व्यू बन के। ठीक है, तो मेमोरी का वेस्टेज होता है बस, केवल उस मेमोरी को अपन कहीं और यूज नहीं ले सकते ना। तो इसीलिए रिसाइकलर व्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि अपन मेमोरी का यूज ले सके कहीं और पे, और जितना अपने को डिस्प्ले पे विजिबल हो रखा है डेटा, उसमें से डेटा क्लीन करके उसी व्यू को दोबारा हैंडल करके और उसी में नया डेटा इंसर्ट कर दे उसी व्यू के अंदर। ठीक है, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, व्यू होल्डर और अडेप्टर। ठीक है, अडेप्टर वाली क्लास में आपको 3 मेथड मैंने कल बताए थे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ठीक है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट, ये अडेप्टर क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है, यही था। ठीक है, इसको आप आगे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे भी इसने बताया रखा है। ठीक है, ये पुराना है, काफी पुराना है, तो इसमें पुराने मेथड लिए गए हैं। इसमें पहले देखो, रिसाइकलर व्यू की प्लगइन्स को भी ऐड किया गया है। सबसे पहले ये देखना, बिल्ड और ग्रिडल मॉडल्स पे जाएगा ये। ठीक है, वहां पे जाकर के पहले फाइल्स को ये इंसर्ट करेगा रिसाइकलर व्यू की। ये काफी पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो है, अभी न्यू में जो आया है उसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आती है सभी चीजें, आपको नए अलग से पहले कंपाइल का यूज होता है, अभी इम्प्लीमेंटेशन का यूज होता है। ठीक है, देखो इसने रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी को ऐड किया है लाइब्रेरी को। ठीक है, तब जाकर के वो यूआई में उस चीज का यूज ले पाएगा। ठीक है, ये देखो, ये पुराना था, न्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यू में आप जो भी यूज करना है डायरेक्ट यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, उसके बाद ये अडेप्टर क्लास की हेल्प लेगा और एक इनर क्लास बनाएगा व्यू होल्डर वाली, पब्लिक क्लास प्रोग्रामिंग व्यू होल्डर करके बनाया है इसने कुछ ऐसा। ठीक है, एक्सटेंड किया रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर के साथ में, जो आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, और वो सुपर क्लास से जो अपन व्यू पास करेंगे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर लेआउट, उस लेआउट में जितने भी आइटम्स होंगे जिसपे अपन डेटा शो करवाएंगे आइटम्स पे, लाइक यूआई कंपोनेंट्स, जो भी यूआई कंपोनेंट्स वहां पे होगा, उस यूआई कंपोनेंट्स में जो जितना भी इनिशियलाइजेशन का काम होगा सारा व्यू होल्डर क्लास के अंदर होगा। ठीक है, डेटा को बाइंड करने का काम जो होगा, मतलब डेटा को जो डालने का काम होगा, वो ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड के अंदर होगा। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर अपन केवल लेआउट का इनिशियलाइजेशन करेंगे। देखना लेआउट का इनिशियलाइजेशन कैसे करता है। ठीक है, या मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूं, बाकी वही है जो कल पूरा बताया था, बस मेरे को तो इसका वर्किंग थोड़ा सा दिखाना था, ये वीडियो में जो था थोड़ा सा, कि रिसाइकलर व्यू एक साथ सारे व्यूज को क्रिएट नहीं करता है, वो रीयूज करता है। एक बार व्यू बन चुका है उसी को रीयूज करके उसमें नया डेटा इंसर्ट करता रहता है बस। ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, तो इसी को मेरे को दिखाना था बार बार कि रीयूज करता है, कैसे रीयूज करता है वो आपको दिखाना था बस। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। लिस्ट व्यू का भी अपन देखेंगे, लिस्ट व्यू किस तरीके से वर्क करता है सेम एनिमेशन के साथ में। ठीक है, लिस्ट व्यू में इस तरीके से नहीं होता है। लिस्ट व्यू में एक बार सारे व्यूज एक साथ क्रिएट हो जाते हैं, लिस्ट स्क्रॉल होती रहती है बस, वो मेमोरी एक बार कंज्यूम हो जाती है, उसमें एक बार जितने भी आइटम्स होते हैं सारे आइटम्स, सभी आइटम्स के व्यू बन जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो काम वहां पे होता है। अभी थोड़ा कुछ समझ में आया एनिमेशन से थोड़ा सा, कि रिसाइकलर व्यू किस तरीके से वर्क करता है थोड़ा। यस सर।
सही बोलना है ऐसा आंसर, झूठ मत बोलना। देखो मेरे को झूठ पसंद नहीं है, नहीं आएगा तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से। आया समझ में। रुपेश सर, रूपाली मैम, उमंग मैम, विशाल सर, शिखर सर, नहीं आया? नो सर। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ पहले तो आप। कहाँ प्रॉब्लम आई वो बताओ मुझे, क्वेश्चन तो बताओ आप, तभी तो मैं उसका आंसर दूंगा ना। हेलो सर वो डिपेंडेंसी के बाद सर, डिपेंडेंसी वाली बात सर उसमें डिपेंडेंसी में जाके किया था सर कुछ। अरे वो डिपेंडेंसी को छोड़ दो, वो पुराना वर्जन था भाई, पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो 3.2 के पहले का था। 3.4 में भी इम्प्लीमेंटेशन का आ चुका था। 3.3 के पहले जो एंड्रॉइड स्टूडियो चलता था ना, बहुत पुराना, जब एंड्रॉइड 6 एंड्रॉइड 7 लॉन्च हुआ ही था तब। तो इतना पुराना है वो, आज से 3 या 4 साल पुराना है वो, ज्यादा ही होगा और भी। वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, बहुत पुरानी वीडियो है वो, मैं उसको सर्च करके मतलब ढूंढ के अच्छे से एनिमेशन वगैरह के साथ में, इसलिए मैं लेके आया था। तो वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था। अभी नए कॉन्सेप्ट में तो आपने डायरेक्ट रिसाइकल व्यू को ले लिया था ना। यस सर। तो नए कॉन्सेप्ट में अपने को काफी ज्यादा यूज पड़ा है, काफी इजी पड़ा है अपने लिए एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम करना, काफी इजी हो चुका है। पहले आपको पता नहीं, शायद पहले टाइप कास्टिंग भी की जाती थी। मैं आपको दिखाऊं, इसे टाइप कास्टिंग भी कर रखी है। ऐसा कभी करवाया क्या मैंने आपको टाइप कास्टिंग जैसा? देखना, आपको मैं वीडियो में दोबारा दिखाता हूँ, देखना एक मिनट, देखना इसी वीडियो में आपको दोबारा दिखाता हूँ रिसाइकलर व्यू की टाइप कास्टिंग करता है वो, देखना। स्क्रीन विजिबल है? देखो प्ले किया मैंने। देखो अभी उसको एरर दे रहा है। वो किस चीज की एरर दे रहा है? फाइंड व्यू बाय आईडी, जबकि अपन डायरेक्ट यूज लेते ना। देखो मैं कास्टिंग की इसकी, टाइप कास्टिंग की है रिसाइकलर व्यू बैक के साथ में ये। हाँ शिखर दिख रहा है? यस सर। इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है ना, वो है बहुत पुराना, 2 पॉइंट कुछ समथिंग है। देखो ऊपर लिखा हुआ है एंड्रॉइड स्टूडियो 2 पॉइंट कुछ समथिंग है, इतना पुराना है। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, जब टाइप कास्टिंग की जाती थी, प्लगइन्स ऐड की जाती थी रिसाइकलर व्यू की, क्योंकि उस टाइम पे क्या ये नया नया आया था। पहले लिस्ट व्यू पे ही काम होता था, जब से रिसाइकलर व्यू पे आने लगा है, जब से रिसाइकलर व्यू आया है, तब से लिस्ट व्यू का यूज बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ठीक है, इतना यूज नहीं होता है फिर उसका, बहुत ही बिल्कुल ही रेयर कर दिया गया उसका यूज। ठीक है, रुपेश सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। यस सर। अभी कोई डाउट है शिखर सर? क्योंकि वो बहुत पुराना था, अपन अभी नया पढ़ रहे हैं। नो सर। उसके अलावा कुछ एनिमेशन में कुछ गड़बड़ हो, कुछ समझ में नहीं आया एनिमेशन में? नो सर, और नहीं है सर कोई प्रॉब्लम। और किसी को कोई हो? उमंग मैम, विशाल सर, रूपाली सिन्हा मैम, नीलम मैम, पुलकित No, शर्मा, sir, no doubt. पुलकित शर्मा, Yes, sir. No doubt, sir. नीलम पाटीदार मैम, वॉइस क्लियर है? सबसे पहले तो पूछ लेता हूँ। Yes, sir. ठीक है। उमंग मेवाड़ा मैम,
एनिमेशन से थोड़ा क्लियर हुआ कि रिसाइकलर व्यू की वर्किंग कैसे होती है? यस सर, क्लियर हो गया। तो रिसाइकलर व्यू क्या करता है, व्यू होल्डर क्या करती है, व्यू होल्डर क्लास है ना जो अपन रिसाइकलर में रीयूज करते हैं ना उस व्यू को, जो अपन ऑन क्रिएट व्यू में जो व्यू देते हैं अपन, जो लेआउट पास करते हैं ना, वो लेआउट उसका रीयूज करने के लिए, और जो लेआउट अपने को एक बार 5 आइटम जो दिख रहे हैं स्टार्टिंग पे स्क्रीन पे, उन 5 आइटम्स के बाद जब अपन स्क्रॉल नहीं करते, पहले जो 5 आइटम दिख रहे हैं उन 5 आइटम के बाद उसको जो उसके नीचे के जितने भी आइटम्स हैं उसको होल्ड करने का काम कौन करता है? व्यू होल्डर क्लास करती है उसको होल्ड करने का, ठीक है। और जब अपन स्क्रॉल करते हैं ना तो व्यू होल्डर क्लास क्या करती है, उसी लेआउट का यूज लेकर के उसमें नया डेटा इंसर्ट करके और ऑन बाइंड व्यू मेथड की हेल्प करती है डेटा को इंसर्ट, मतलब व्यू दिखाने में, पूरा वहां से नया डेटा डालने में ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो अपन ने देखो ठीक है सर, सॉरी रुपेश मिश्रा सर, मेन एक्टिविटी 6 ओपन करना जावा वाली। देखो अपन ने यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं की है रिसाइकलर व्यू की, दिख रहा है शिखा सर? शिखा सर? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे देखो कोई एरर भी नहीं दे रहा है वो, जबकि उसके एरर दे रहा था ना, रेड लाइन आ रही थी ना नीचे, यहाँ पे नहीं आ रही। देखो वो इसलिए क्योंकि वो पुराना मेथड था, नए मेथड में हमेशा कुछ चेंजेस होते ही होते हैं हमेशा, ठीक है। तो मैं आपको जिसके पुराना जो पहले से वर्क कर रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो पे पुराने वाले पे, तो उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं अपन, नया पुराना दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिसाइकलर व्यू के लिए अपन एक नया लेआउट बना लेते हैं, छोटा सा। सर एक लेआउट बना लो आप, लेआउट पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, लेआउट रिसोर्स फाइल, आइटम अंडरस्कोर लेआउट, इस नाम से अपन एक लेआउट बना लेते हैं। कुछ नहीं करना है, ओके कर देना सीधा सीधा बस। ऐड, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रैप कंटेंट मैच पेरेंट जो करना हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाइट को तो केवल रैप कंटेंट ही रखो हमेशा, ठीक है। जो अपन ने कंस्ट्रेंट लेआउट की जो हाइट दी है उसको भी रैप कंटेंट कर दो, उसको कंस्ट्रेंट लेआउट की जो हाइट है। चलो ठीक है, यहाँ कंस्ट्रेंट का कर दो, पहले कंस्ट्रेंट लगा लो स्टार्टिंग से टॉप टू टॉप ऑफ या पेरेंट, कंस्टेंट स्टार्ट कंस्टेंट एसएस एंड ऑफ है, ठीक है। सेंटर में कंस्टेंट स्टार्ट ऑफ पेरेंट, बस उसकी हाइट को हाँ बिल्कुल रैप कंटेंट कर दो बस, ठीक है। रैप कंटेंट क्यों किया, क्योंकि जितना अपन जो भी अभी एरर जो दिखाने वाले हैं वो इतना सा ही साइज ले, पूरी स्क्रीन का साइज ना ले ले, केवल एक कंटेंट को एक आइटम को दिखाने के लिए केवल पूरी स्क्रीन को ना वो ले ले, केवल इसलिए रैप कंटेंट लिया ताकि जितना कंटेंट होगा उतना ही वो वहाँ पे स्पेस को लेगा, ठीक है। इसलिए रिसाइकलर व्यू पे आ जाते हैं अपन और इस लेआउट का इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड के अंदर। रिटर्न के ऊपर आना है अपने को, रिटर्न के आगे आ जाओ, हाँ एंटर प्रेस कर दो बस, ठीक है।
यहाँ पे अपन लेआउट इनिशियलाइजेशन के लिए लेआउट इन्फ्लेटर नाम की एक क्लास होती है, उसका यूज लेते हैं अपन। पहले सुनो, पहले व्यू का एक वेरिएबल बनाएंगे, व्यू कैपिटल वी, हाँ व्यू स्पेस, यहाँ पे वी या व्यू जो भी लिखना चाहो लिख लो, वेरिएबल बनाना है क्योंकि, है ना। अब इस वेरिएबल के इक्वल में लेआउट इन्फ्लेटर कैपिटल एल क्लास है, लेआउट इन्फ्लेटर क्लास है, मैंने बोला था पहले, क्लास का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। डॉट फ्रॉम में क्या पूछ रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट अपन इसमें पास करेंगे, और चाहो तो ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लो कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, और फिर इसको कंस्ट्रक्टर की मदद से हेल्प से आप कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट करके, वहां पे ऑप्शन पेरेंट आप ले सकते हो, व्यू ग्रुप का जो वेरिएबल है पेरेंट, उसमें आप डॉट लगा करके गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाहर आ जाओ, इसके डॉट लगाओ, नहीं सेमीकोलन नहीं लगाना है अभी, डॉट लगाओ, इन्फ्लेट मेथड इसका, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है लेआउट वाला, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लेआउट को पास करेंगे, तो यहाँ पे आर डॉट रिसोर्सेज डायरेक्टरी, आर कैपिटल आर डॉट लेआउट या डॉट आइटम, बिल्कुल कोमा लगा करके दूसरा अपन यहाँ पे दूसरा अपन से पूछ रहा है व्यू ग्रुप वाला, तो व्यू ग्रुप वाला पास कर देंगे यहाँ पे पेरेंट, जो उसका वेरिएबल है व्यू ग्रुप का, देखो ऊपर बना हुआ है पेरेंट करके, ठीक है। अब व्यू ग्रुप अपन ने पास कर दिया, उसके बाद अपन पास करेंगे यहाँ पे बुलियन अटैच टू रूट, कोई और दूसरा तो है नहीं है, ठीक है, तो नहीं है अपने पास, तो इसको फॉल्स पास कर देंगे कोमा लगा करके। दूसरा लेआउट के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो अटैच टू रूट कोई दूसरा लेआउट है या नहीं है, तो नहीं है अपने पास, ठीक है, ठीक है। अब नीचे एंटर करके नीचे आएंगे अपन, यहाँ पे अपन जो अपन ने नीचे कौन सी क्लास बनाई है, अपन ने बनाई है रिसाइकलर व्यू होल्डर, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिसाइकलर व्यू होल्डर का, वहीं पे हाँ, रिसाइकलर व्यू होल्डर देखो, कैपिटल आर, रिसाइकलर व्यू होल्डर कैपिटल आर, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना पहले, तो क्लास का नेम आता है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद उसका वेरिएबल बनता है, फिर इजिकल टू स्पेस दो, स्पेस, हाँ व्यू होल्डर वेरिएबल कुछ किसी भी नाम से बना सकते हो, रिसाइकलर व्यू होल्डर के नाम से या व्यू होल्डर के नाम से, ठीक है, व्यू होल्डर इजिकल टू न्यू, ठीक है, रिसाइकलर व्यू होल्डर कैपिटल आर, ठीक है, हाँ या अब ये आपसे एक व्यू मांग रहा है, तो अपन यहाँ पे जो अपन ने व्यू का वेरिएबल बनाया था ना, वो उसको यहाँ पे पास कर देंगे अपन व्यू, और बाहर अपन सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपन ने एक लेआउट पास कर दिया व्यू होल्डर क्लास में, लेआउट के अब इस लेआउट में जितने भी आइटम्स होंगे ना, तो वहां पे अपन व्यू होल्डर क्लास में उनको इनिशियलाइजेशन कर लेंगे, वहां पे आइटम व्यू की मदद से, उसमें जो कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल है आइटम व्यू, उसकी मदद से, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिटर्न में अपन पास करेंगे व्यू, सॉरी व्यू होल्डर, रिटर्न के अंदर अपन क्या नल लिखा हुआ ना, वहां पे पास कर देंगे अपन व्यू होल्डर रीयूज के लिए, इसलिए रिटर्न। अब नीचे आ जाएंगे व्यू रिसाइकलर व्यू होल्डर क्लास के अंदर, यहाँ पे देखो आपको एक मेथड जो कंस्ट्रक्टर बनाया मिल रहा है आपको रिसाइकलर व्यू होल्डर का, उसमें व्यू का एक वेरिएबल भी है, देखो आइटम व्यू, जो आपने व्यू वहां से पास किया ना, उसका यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है आपको आइटम व्यू, तो ठीक है। अब अपन उस लेआउट के वेरिएबल
को एक्सेस करेंगे। सर अपन ने आइटम लेआउट के अंदर आईडी दी थी क्या टेक्स्ट व्यू की? चेक करना एक बार। आइटम लेआउट जो है आईडी नहीं दी हो तो आईडी दे दो। ऐसे नहीं देते हैं, पहले @ +ID आता है वहां पे। या रिसाइकलर टेक्स्ट, ठीक है। एंटर प्रेस करके नीचे आ जाओ, सुपर के नीचे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ इसी क्लास में टेक्स्ट व्यू का, ऊपर कंस्ट्रक्टर के ऊपर, कंस्ट्रक्टर के ऊपर, नहीं तो फिर एक्सेस नहीं हो पाएगा ना वो मेथड के बाद। कंस्ट्रक्टर के ऊपर, हाँ एक्सेस करना है अपने को ऊपर ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर डेटा सेट करने के लिए, इसलिए है ना। अब इसी का टेक्स्ट व्यू सुपर क्लास के जस्ट नीचे, सुपर आइटम व्यू के जस्ट नीचे आ जाए। टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आइटम व्यू लिखना पड़ेगा आपको, ताकि वो उस लेआउट को कॉल करेगा। अब उस लेआउट में फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड डॉट लगाओ। अब फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड को कॉल करो, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसा अपन काम करते हैं r.id करके रिसाइकलर टेक्स्ट पास कर दो, सेमीकोलन लगा दो लास्ट में। तो ये अपन ने उसके अंदर जो टेक्स्ट व्यू यानी कि यूआई कंपोनेंट जो था उसको अपन ने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब अपन इसमें डेटा सेट करेंगे। तो डेटा सेट करने के लिए कौन सा मेथड होता है? ऑन बाइंड व्यू होल्डर, उस पे चलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन जो अपने पास लिस्ट है, एरे लिस्ट जो है अपने पास, स्ट्रिंग एरे करके जो है, उसमें अपन हर आइटम को एक्सेस कर, हर आइटम को टेक्स्ट में दिखाना है ना, हर आइटम को सारे आइटम्स दिखाने हैं क्योंकि 1 बाय 1 करके। तो अपन सबसे पहले उसमें पोजीशंस, पहले स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाएंगे। पहले सबसे पहले स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाते हैं अपन, स्ट्रिंग कुछ भी बना लो, जो भी बनाना हो, ABC या स्ट्रिंग, हाँ ठीक है चलेगा। इज इक्वल टू, स्ट्रिंग मत लिखा करो, str लिखा करो हमेशा, स्ट्रिंग को पूरा मत लिखा करो कभी भी, क्योंकि जावा है ना, जावा फिर बनी बनाई चीजें होती है, अलग अलग होती है स्ट्रिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट लिखो, लिस्ट एरे जो है, ठीक है, हाँ लिस्ट डॉट गेट, नहीं आया अभी तक। गेट क्लास नहीं, केवल गेट मेथड होगा, देखो नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया? बट चलो ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। ओके, अपन ने अभी कंस्ट्रक्टर को वो नहीं किया ना, अपन ने कंस्ट्रक्टर वगैरह का काम नहीं किया ना, ठीक है ठीक है। अपन मेन एक्टिविटी में आते हैं, इसको हटा दो, लाइन को हटा दो, आ जाएगा, कोई इशू नहीं है वाला, ठीक है। मेन एक्टिविटी में आ जाओ और यहाँ पे ऊपर एक अडेप्ट, नीचे कहीं पे भी एक वेरिएबल बना लो जो अपने अडेप्टर का क्लास बनाए थे, रिसाइकलर अडेप्टर, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, या तो बाहर बना लो वेरिएबल, पहले वेरिएबल बना लो रिसाइकलर अडेप्टर करके जो क्लास है अपनी, अडेप्टर या किसी भी नाम से बना लो, रिसाइकलर अडेप्टर या अडेप्टर, जो भी आपको बनाना हो। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट भी बना लो। ऑब्जेक्ट हमेशा अडेप्टर इक्वल टू न्यू, न्यू
स्पेस रिसाइकलर एडेप्टर। ठीक है, अभी आपसे कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा, सेमीकोलन लगा दो लास्ट में। तो अब अपन चलेंगे रिसाइकलर अडेप्टर वाली क्लास में, वहां बनाएंगे पहले कंस्ट्रक्टर, क्योंकि अपने को ये लिस्ट पास करनी है उस क्लास के अंदर। तो ऊपर चलेंगे सबसे पहले ऊपर चलेंगे। हाँ, क्लास जो स्ट्रिंग एरे लिस्ट वेरिएबल बना रखा है, सेमीकोलन के बाद स्पेस एंटर करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नाम की एक क्लास होती है, CON कॉन्टेक्स्ट, कैपिटल C क्लास, हाँ कॉन्टेक्स्ट सेकंड, यस, इसी का वेरिएबल बना लो कॉन्टेक्स्ट करके, सेमीकोलन, एंटर करके नीचे आ जाओ, एंटर करके नीचे आ जाओ। अब प्रेस करो ऑल्ट इंसर्ट, कीबोर्ड में की होगी देखो, ऑल्ट और इंसर्ट की दोनों को प्रेस करो, शॉर्टकट है याद रखना, ठीक है। देखो आप यहां से कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करो, एंटर प्रेस करो, दोनों को सेलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ में, ओके कर दो। आपका कंस्ट्रक्टर रेडी हो चुका है बन के, ठीक है। अब देखो मैन एक्टिविटी 6 जावा वाली फाइल में देखो, अब वहां पे एरर देगा, देखना आपको। एरर आ रही है देखो। तो फर्स्ट पैरामीटर ये पास मांग रहा होगा आपसे लिस्ट वाला, लिस्ट पास करो, कॉमा लगाओ। सेकंड क्या मांग रहा है देखो, सजेशन नहीं दिया ना इसने, ये नहीं सजेशन नहीं दे रहा है, सजेशन नहीं दे रहा है वो, रहने दो। डिस पास कर दो केवल, आप यहाँ पे कॉमा लगाओ, डिस पास कर दो। सेकंड कॉन्टेक्स्ट ही मांग, क्योंकि आपने वहां पे कंस्ट्रक्टर में पहला लिस्ट लिया हुआ है ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर देखो रिसाइकलर व्यू का जो कंस्ट्रक्टर है, सॉरी रिसाइकलर एडेप्टर का जो कंस्ट्रक्टर है, देखो रिसाइकलर एडेप्टर का कंस्ट्रक्टर है। देखो फर्स्ट पैरामीटर क्या है कंस्ट्रक्टर में, स्ट्रिंग एरे का रिसाइकलर एडेप्टर, ऊपर व्यू होल्डर क्लास पे ही हो गया, ऊपर चलो। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग लिस्ट है, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड है कॉन्टेक्स्ट। तो आपने मैन एक्टिविटी 6 डॉट जावा में पहले लिस्ट पास किया है, उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट पास किया है, यानी कि एक्टिविटी पास की है। देखो कर दिया पास, मुझे कुछ विजिबल नहीं हो रहा है एक्चुअली में सर। मैन एक्टिविटी डॉट 6 सर सॉरी मैन एक्टिविटी 6 डॉट जावा, हाँ बोलो सर। सर बीच में थोड़ा साउंड ग्लिच हो गया था, कुछ समझ सुनाई नहीं दिया, क्या बोले? मैं बोला कि हेलो देखो सर। अपने रिसाइक जो कंस्ट्रक्ट, हेलो अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, तो मैं इतना सा बोला हूँ कि अपन ने जो कंस्ट्रक्टर बनाया ना रिसाइकलर एडेप्टर क्लास में, उस कंस्ट्रक्टर सर। में दो वेरिएबल है, फर्स्ट है स्ट्रिंग एरे का लिस्ट वेरिएबल, ठीक है, और सेकंड है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वही अपन ने मैन एक्टिविटी 6 डॉट जावा में पास किए हैं दोनों। देखो मैन एक्टिविटी 6 डॉट जावा दोनों पास किए, फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड कॉन्टेक्स्ट पास किया है अपन ने, ठीक है। एंटर करके नीचे आ जाएंगे, यहां पे लिखेंगे रिसाइकलर व्यू, वेरिएबल रिसाइकलर व्यू का वेरिएबल, हाँ, डॉट सेट अडेप्टर करके मेथड होगा, सेट अडेप्टर थर्ड, या यहां पे अडेप्टर को अपन पास कर देंगे, ठीक है।
अडेप्टर सेट हो चुका है। अब ये अपना काम है रिसाइकलर व्यू पे डेटा को बाइंड करने का। बाइंड करो भी। ठीक है ना। अभी ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड पे आ जाए। अब यहाँ पे अपन बनाएंगे स्ट्रिंग का वेरिएबल। str इज इक्वल टू इक्वल का साइन देंगे यहाँ पे, इक्वल या लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स पोजीशन को पास कर देंगे यहाँ पे। जॉइंट में पोजीशन है तो वो हर एक पोजीशन को हिट करके वो टेक्स्ट में दिखाता रहेगा। सॉरी, हर एक पोजीशन को हिट करेगा। जो भी लिस्ट में जितनी भी अपने पास जितना भी डेटा है वो सारा डेटा हर एक पोजीशन पे जाएगा। पहले 0 पे फिर 1 पे। तो 0 पोजीशन पे जैसे जाएगा वो वैल्यू आएगी str में। ठीक है, अब वो str में जैसे वैल्यू आती है उस वैल्यू को अपन टेक्स्ट व्यू में दिखा देंगे 0 वाली। ऐसे ही फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, जितनी भी अपना डेटा होगा सारा डेटा आता जाएगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, एंटर करके नीचे आएंगे। अपन ने देखो अभी अपन को रिसाइकलर व्यू होल्डर क्लास जो थी उसमें जो टेक्स्ट व्यू अपन ने लिया है उसको एक्सेस करना है। तो उसके लिए अपने को पहले यहाँ पे रिसाइकलर व्यू होल्डर का एक वेरिएबल बनाया मिल रहा है अपने को मेथड में होल्डर करके। उसका अपन यूज लेंगे उसको एक्सेस करने के लिए। तो होल्डर लिखेंगे अपन यहाँ पे, डॉट लगाएंगे। देखो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आपको विजिबल हो रहा है जो अपन ने वहां पे वेरिएबल बनाया था। क्लिक, एंटर कर दो। सॉरी, डॉट इसका मेथड है डॉट सेट टेक्स्ट करके एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट सेट कर देंगे, str को पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा अपने यहाँ पे सेट हो चुका है। गेट आइटम काउंट में अपन ने लेंथ पास कर दी, जितनी एरे की लेंथ होगी उतना डेटा वो दिखाएगा। ठीक है, तो लेंथ भी अपन ने पास कर दी, तो तीसरा मेथड भी कंप्लीट हो चुका है अपना, है ना। रिसाइकलर व्यू होल्डर का काम हो चुका है अपना कंप्लीट। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम कंप्लीट हो चुका है। ऑन बाइंड का काम कंप्लीट हो चुका है। मैन एक्टिविटी 6 डॉट जावा वाली फाइल में आ जाते हैं अपन। वहां का कोई काम पेंडिंग पड़ा तो नहीं है ना, देख लेते हैं एक बार। वहां का भी कोई काम लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। तो अब प्रोग्राम को अपन रन कर सकते हैं अच्छे से। या सर आपको अच्छे से याद रहेगा, मेरे को याद नहीं रहता, मैं भूल गया था, सॉरी। सर ये स्टॉप शेयरिंग जो लिखा हुआ है ना उसके पास में हाइड वाला ऑप्शन भी है, उसको भी उस पर प्रेस कर दो, केवल हाइड पे बस। देखो सारे आइटम विजिबल हो चुके हैं अपने, विजिबल हैं। यस सर। आइटम्स को चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं अपन चाहे तो। सर लिस्ट की साइज थोड़ी इंक्रीज कर दो, थोड़ी ज्यादा कर दो लिस्ट की साइज। इसको नहीं, लिस्ट की साइज को, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर चाहो तो आप हाइट को थोड़ा बढ़ा सकते हो ताकि आइटम तो फॉन्ट नहीं करो। स्क्रॉलेबल। हाँ
फॉन्ट नहीं करूँ, फॉन्ट का साइज बड़ा नहीं करूँ? फॉन्ट का साइज कर दो या लिस्ट बढ़ा दो, जो भी करना हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। अपने को तो स्क्रॉलेबल बनाना है बस केवल। फॉन्ट साइज नहीं होता, केवल टेक्स्ट साइज एट्रीब्यूट होता है उसका, टेक्स्ट साइज। कॉमा लगाओ, डाल दो, बस। अब रन कर लो कॉमा हटा करके। स्क्रॉलेबल होगा अभी देखो, सारे आइटम अपने आ रहे हैं, बस हमेशा वो रीयूज हो रहा है उसका ऊपर का लेआउट, वो अपने को विजिबल नहीं हो रहा कि वो वर्किंग कैसे चल रहा है, इसलिए मैंने एनिमेशन दिखाया था। नहीं तो आपको मैं प्रोग्राम चला के दिखाता तो लिस्ट व्यू और इसमें रिसाइकलर व्यू में आपको डिफरेंशिएट पता नहीं चलता कि भाई क्या डिफरेंस होता है थोड़ा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था बस केवल। एनिमेशन दिखाने का मेरा और कोई मोटिव नहीं था उसमें, इतना सा ही मोटिव था मेरा। देखो स्क्रॉलेबल भी चल रहा है, अपना आइटम भी अच्छे से आ रहा है सारे। ठीक है, तो ये तो अपन ने किया था एक एरे की मदद से। अब अपन कल तो नहीं, आगे जब अपन फायरबेस पढ़ेंगे तब वहां पे एरे लिस्ट की हेल्प लेंगे, वहां पे एरे लिस्ट या लिस्ट की हेल्प लेंगे वहां पे रिसाइकलर व्यू में, तो वहां पे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अभी आपका यही आज का टास्क यही होगा आपका कि आपको रिसाइकलर व्यू में कुछ भी प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको फ्रूट्स की, आपके पास एक लिस्ट होगी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की, आप एक लिस्ट बनाओगे जिसमें करीबन आपको 20 या 25 नेम होंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। ठीक है, उन्हें आपको ऐसे एज इट इज ट्राई करना है लिस्ट में शो कराने का। ठीक है रुपेश सर, आप ट्राई करना एरे लिस्ट में डालने का, क्योंकि आप यही कर दोगे तो आपको केवल आइटम ही ऐड करने हैं, बाकी चला के डाल दोगे आप, मुझे पता है। ठीक है, तो आपको एरे लिस्ट से ट्राई करना होगा थोड़ा। मैं अभी क्वेश्चंस डाल देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो किसी भी चीज में? हेलो गाइस। नो सर। इस कोड को अगर दोबारा देखना हो तो देख लो, रुपेश सर एक बार इनको बता दो दोबारा से अच्छे से, पूरा कोड देख लो आप पहले। मैन एक्टिविटी 6.java वाला कोड देख लो, जिसको लिखना हो लिख भी ले। और अब रिसाइकलर अडेप्टर वाली क्लास का कोड बता दो इनको केवल। स्टार्टिंग से बिल्कुल अपन ने क्लास बनाई थी, एक्सटेंड किया था रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर वाली क्लास से। ठीक है, उसमें अपन ने एक इनर क्लास बनाई थी रिसाइकलर व्यू होल्डर, और इनर क्लास को ग्रेटर देन लेस देन में जब एक्सेस किया तो रिसाइकलर अडेप्टर, अपन ने पहले क्लास का नाम लिखा था मेन क्लास का, उसके बाद रिसाइकलर व्यू होल्डर को कॉल किया था ग्रेटर देन लेस देन के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने अपने को 3 मेथड इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बोला था, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन बाइंड व्यू और गेट आइटम काउंट, जिनको अपन ने इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, नीचे व्यू होल्डर क्लास को भी अपन ने एक्सटेंड किया था। व्यू होल्डर नीचे जो क्लास है रिसाइकलर व्यू होल्डर करके, नीचे 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 बिल्कुल नीचे लास्ट क्लास में यहाँ पे अपन ने इसको एक्सटेंड किया था। व्यू होल्डर क्लास, रिसाइकलर व्यू की एक क्लास होती है व्यू होल्डर, उसकी मदद से अपन इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद अपने को उसने बोला कि एक मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें एक वेरिएबल होगा व्यू का। ठीक है, आइटम व्यू करके, तो वहां पे अपने जितने भी व्यू में जितने भी आइटम्स होंगे यानी कि यूआई कंपोनेंट्स होंगे उन सबका इनिशियलाइजेशन कर लेंगे वहां पे अपन। ठीक है, तो वो सारा काम उसने किया था यहाँ पे। और ऊपर आ जाते हैं अपन इसी क्लास को अपन चाहते तो मैन एक्टिविटी 6.java में भी अपन
बना करके वहां पे भी कॉल कर सकते थे, फिर अपने को कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कंस्ट्रक्टर बनाने की नीड अपने को तभी पड़ी क्योंकि अपन ने एक नई क्लास बनाई थी अच्छे से, तो इसीलिए एक प्रोफेशनल वर्क ऐसे ही होता है। ठीक है, तो पूरा प्रोफेशनल वर्क करना आपको सिखा भी रहा हूँ लगभग थोड़ा। हेलो सर। हाँ सर। सर तो जो हम लोग जो भी बनाएंगे टास्क, तो वो भी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे उसमें भी, या हाँ सर। बेसिक नॉर्मल? सर हम लोग का जो टास्क रहेगा, मतलब जो आपने दिया है कल के लिए जो हाँ, सबमिट करना है, हाँ। तो सर उसमें भी कंस्ट्रक्टर यूज करना है? बिल्कुल सर, बिना कंस्ट्रक्टर के आप लिस्ट कैसे पास करोगे इस वाली क्लास में, मुझे ये बताओ। ओके आप सर। मेन एक्टिविटी में एक स्ट्रिंग में अच्छी खासी, तो उस लिस्ट को अपने को इस क्लास में लाना भी तो है, तभी तो वो दिखाएगा डेटा को। अगर वो डेटा आएगा ही नहीं इसी क्लास में तो वो दिखाएगा क्या? ठीक है, तो अपन कंस्ट्रक्टर की मदद से डेटा को वहां जो मेन एक्टिविटी डॉट 6 जो जावा में जो डेटा है अपना, उस डेटा को इस क्लास के अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, चाहे आप कॉन्टेक्स्ट को पास ना करो, पर लिस्ट को पास करना कंपलसरी होगा आपके लिए। ठीक है, इसका अपन दोबारा प्रैक्टिकल करेंगे एरे लिस्ट के साथ में, तब वहां पे अपन गेट आइटम काउंट में यहाँ पे जो एरे लिस्ट का जब यूज कर रहे होंगे ना अपन, तब यहाँ पे अपन ने लिस्ट डॉट लेंथ लिखा है ना गेट आइटम काउंट में, वहां पे अपन एरे लिस्ट में लिखेंगे लिस्ट डॉट साइज मेथड होता है, उसको कॉल करेंगे। यहाँ पे जितनी भी एरे लिस्ट की साइज होगी ना, उस साइज के अकॉर्डिंग वो डेटा दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे केवल सिंपल एरे था, तो एरे की केवल लेंथ होती है, इसलिए अपन ने लेंथ को कॉल किया था। और एरे लिस्ट की क्या है, साइज होती है, पूरी साइज की उस एरे लिस्ट में कितने आइटम्स, कितने वो मतलब डेटा, कितना डेटा है उसके अंदर। ठीक है, तो उनकी साइज के अकॉर्डिंग होता है, तो वो साइज मेथड यहाँ पे कॉल होता है। तो वो भी अपन सीखेंगे फायरबेस डेटाबेस के साथ में या रूम डेटाबेस के साथ, किसी के साथ भी अपन सीख लेंगे, बस सीखेंगे जरूर, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आपका रिसाइकलर व्यू कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। किसी को डाउट है? मेथड देख लो, तीनों मेथड है, ऊपर कंस्ट्रक्टर भी देख लो, कंस्ट्रक्टर कैसे बना रखा है अपन ने। सर स्क्रॉल कर दो ऊपर, कंस्ट्रक्टर भी देख लो। अपन ने की प्रेस की थी, ऑल्ट प्लस इंसर्ट, शॉर्टकट भी है, देख लो। अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना आता हो तो बना लेना, कोई इशू नहीं है मुझे। क्लास नेम से बनता है हमेशा कंस्ट्रक्टर। जो क्लास का नाम होगा ना, पब्लिक करके क्लास का नाम देना है अपने को, और ब्रैकेट्स लगाने हैं। ब्रैकेट्स के बाद फिर उसमें एक स्ट्रिंग एरे लिस्ट वेरिएबल बना देना है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा करके दिस ऑपरेटर का यूज ले लेना है। जिसका नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, अगर आप स्ट्रिंग एरे का वेरिएबल लिस्ट नहीं बनाते हो या कुछ और बनाते हो, लिस्ट बन करते हो, तो फिर दिस कीवर्ड की नीड नहीं होती है। दिस कीवर्ड की नीड तभी होती है जब बाहर भी सेम ही वेरिएबल का मतलब जो अपन ने वेरिएबल बनाया उसका नेम और जो अपन ने कंस्ट्रक्टर में जो नेम पास किया है वो अगर सेम है, तो दिस कीवर्ड की मदद से वहाँ पे उसको प्रोग्राम में थोड़ा समझने में थोड़ी हेल्प होती है उसको, कि भाई कौन सा वेरिएबल क्या है क्या नहीं, किसकी वैल्यू कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही, तो वो समझ जाता है फिर उस चीज़ को अच्छे से। बाय डिफॉल्ट जब अपन ने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तो वहाँ पे ब्लैंक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है जावा के अंदर, वो कॉल होता है क्लास का बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो वो कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो पर यस सर। हेलो, किसी को डाउट ना हो तो आप लोग लीव कर सकते हो, डाउट हो तो आप वेट करो। ठीक है, ओके सर। डाउट नहीं हो तो फिर बताओ। थैंक यू सर। ठीक है, ऐसा सर कोई डाउट हो तो बताओ आपको। नहीं सर, बस वही डाउट था। शिखर सर सबसे पहले लेफ्ट होते हैं, उनको बोल दिया जाए बस जाओ सबसे पहले, फिर डाउट भी उन्हीं को आते हैं सबसे ज़्यादा बाद में, फिर परेशान होते रहते हैं वो, पूछते नहीं है, पता नहीं कहीं किस बात की शर्म है।
सर मैं शेयरिंग बंद करूँ सर? हाँ सर बिल्कुल। थैंक यू सर। देखो आपको जिस भी लाइन पे डाउट हो ना वो लाइन आप पूछ लिया कीजिए मुझसे, ठीक है। लाइन अपन पूरी लाइन बाय लाइन कोड पढ़ रहे हैं अपन, जब से पढ़ रहे हैं तब से। और आगे भी अपन ऐसे लाइन बाय लाइन कोड ही पढ़ेंगे। या नीलम मैम, हेलो हेलो नीलम मैम, बोलो। अर्चिता मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो प्लीज। रिकॉर्डिंग ऑफ हुई? नहीं हुई क्या? मुझे बता दो, अगर नेटवर्क का इशू आ रहा तो कोई इशू नहीं है, मैं कर देता हूँ।